So let's go now to the second module of the same of the chemical reactions and the equations. Here we are going to discuss that whenever the chemical reaction happens, there is a change in state, as I told you. Change in state also happen in the physical change, right? See, gas can be converted into liquid, liquid can be converted into solid, solid can be converted into gas, and this happens, right? But this can happen even in the physical change. But here I'm talking about what? I'm talking about the chemical change. So in the chemical changes, there is change in state, there is sometimes change in color, there is evolution of gas as in the factories, there is a change in the temperature. Then there is also the formation of the precipitate. These are the major things which will show you that a chemical reaction has taken place. Okay. Now, in order to understand more about this chemical change, we need to understand about the valency chart. I recommend you learn this valency chart very well. You make a chart on your own in form of a chart, hang it out in your room, or you can make it as a cards and keep on revising whenever you get a time. So let me discuss the main valency chart, what we have here now. So there is hydroxide OH minus, Cl minus, as you can see that it is chloride, Br minus is bromide, I minus is iodide, NO3 minus is nitrate, HCO3 is bicarbonate, ALOT minus is aluminate, it has got a single valency. Silver, Ag plus, it is plus now, right? It has got, Ag is the symbol of silver, so Ag has got 1 plus, that is silver. Sodium also has got 1 plus, so hydrogen, it is also H plus, and potassium is also, that is 1K plus. Okay, now these all this, like see, I have got the negative ions as well as the positive ions, and all this have got a special characteristics. I can say that every of this whichever I have read out now, they have got a negative or positive but valency of 1. Okay, okay, now you can see that सबकी valency एक है, all of them are having the valency that is 1, right? Now we have got the valency which has got 2. So cadmium ion Cd plus 2 cadmium, calcium Ca2 plus, that is calcium, Mg2 plus, that is magnesium, Hg2 plus, that is mercury, Zn2 plus is zinc, Ba2 plus is barium, O2 minus is oxide, S2 minus is sulfide, CrO4S2 minus, that is chromate, CO3 2 minus is carbonate, SO4 2 minus is sulfate, and Zn2 minus is zincate, right? You need to remember all this. देखो इन सब की जो वैलेंसी होती है that is 2. हाँ, अब कुछ कुछ की ना जो मल्टीपल वैलेंसी भी होती है, जैसे कॉपर हुआ, आयरन हुआ, इनकी तो वेरिएबल वैलेंसी है. हाँ, तो कॉपर की वैलेंसी होती है 1 and 2, दैट इज क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक कहते हैं. वैसे ही आयरन की 2 और 3 होती है, तो आयरन की वैलेंसी 2 प्लस भी हो सकती है और 3 प्लस भी हो सकती है. जब वो 2 प्लस होगी तो इसको हम कहेंगे दैट इज फेरस, एंड जो Fe3 प्लस होगी तो इसको हम लोग कहेंगे दैट इज फेरिक, राइट? तो ये हो गई हमारी वैलेंसी चार्ट. तो कंपाउंड का नाम लिखने के लिए जो आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है, इस वैलेंसी चार्ट की बदौलत बहुत जल्दी हो जाता है. तो आई रिकमेंड दैट यू ऑल लर्न इट. 5 मिनट्स लगेंगे, फटाफट याद कर लेना, ठीक है? वैसे ही हमारे पास में कुछ कुछ वैलेंसी है, वो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस होती है, NH4 अमोनिया 1 प्लस, Pb2 प्लस, वैसे बहुत सारी होती हैं, एक्स्ट्रा भी सारे को याद कर लेना. गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स. नाउ chemical equations. A simple representation of a chemical reaction in words is called as the word equation. कोई चीज हो रही है ना केमिकल रिएक्शंस में, अगर हम उसको वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे ना तो उसको हम लोग वर्ड इक्वेशन कहेंगे. जैसे कि मैग्नीशियम, हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था, तो मैग्नीशियम के साथ क्या रिएक्ट किया हुआ था? एयर में था आपके पास ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम जलने के लिए ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन के साथ मिल करके, जल करके उसने एक नया सब्सटेंस बनाया और वो सब्सटेंस का नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है भाई, ये तो हो गई वर्ड इक्वेशन. तो वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के बाद हमें सीखना है कि इसको
हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीज होती है ना, देखो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, क्योंकि आपस में वो रिएक्ट करते हैं। और जो राइट हैंड साइड में होता है उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये एरो मार्क रहेगा, ये सिंगल एरो मार्क ऐसा लगा देना ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज आपस में रिएक्ट कर रही है, which two things are reacting with each other and what is the final product you have got, that is magnesium oxide, right? Okay, now the chemical equation is a shorthand form of a chemical change। हर बार पूरे शब्दों में लिखना काफी लंबा हो जाता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि Mg मैग्नीशियम का सिंबल होता है, IUPAC वालों ने उसको नेम करके रखा हुआ है Mg, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिखते हैं O2। हाँ, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है और MgO बन जाता है। तो ये केमिकल इक्वेशन लिखने का सिंपल सा तरीका है, कंप्लीट नहीं है, इसको हमें कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स कहलाएगा और राइट हैंड साइड में आपने प्रोडक्ट्स को लिख लिया। ठीक है, सबसे पहला जो हमने एक्टिविटी किया था उसका इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब क्या, हाँ, अब क्या, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? बेटा आपको डाल्टन साहब ने बताया था, आपको पता भी है, हाँ, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है ना, तो केमिकल रिएक्शंस होते समय कोई नया कोई एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं होता, नई सब्सटेंस जरूर प्रोड्यूस होती है लेकिन कोई नया एलिमेंट नहीं प्रोड्यूस होता है। और ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है, ना कोई नया एटम बनता है। इसका मतलब कि रिएक्टेंट के साइड में जितने भी आपके पास, ये देखो, ये रिएक्टेंट के साइड में जितने भी आपके पास में सब्सटेंसेस होते हैं वही चीज आएंगे आपके पास, दैट इज द प्रोडक्ट के साइड में। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स दोनों के हिसाब से तो एक ही होना चाहिए ना, तो होगा। ओके, सो above reaction is an एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलेटल, क्योंकि अभी जो हमारा रिएक्टेंट साइड्स में नंबर ऑफ एटम्स और जो प्रोडक्ट साइड्स में नंबर ऑफ एटम्स सेम तो नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार के जो भी इक्वेशन जिसमें हम सिर्फ सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, अभी बैलेंसिंग नहीं हुआ है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे? स्केलेटल chemical equation, right? Okay, ठीक है। The next one, we are supposed to write the chemical equation. What are the basic steps of the writing of chemical equation? chemical equation को लिखने के लिए क्या क्या important steps होते हैं? तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहले हम reactants को लिखेंगे, फिर हम products को लिखेंगे। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किस फॉर्म में था? तो कहा कि सॉलिड फॉर्म में था ना, तो सॉलिड फॉर्म में हम देखेंगे यहां पर अपन ने S लिख दिया, S मतलब सॉलिड। ठीक है, अब इसके साथ क्या रिएक्ट किया? तो कहते हैं कि ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को कहां से लिया गया था? तो बोले इट वाज टेकन फ्रॉम एयर, सो इट इज इन द गैसियस फॉर्म, सो यू राइट अ गैस G, राइट? एंड the reactants and the products, the reactant should be written on the left hand side and the products on the right hand side. The reactant and products are separated by an arrow and two or more reactants and products are separated by the plus signs. You can see that the magnesium which is in the solid state MgS reacts with oxygen which is in the gaseous form to give a product which is the magnesium oxide. Magnesium oxide was in the powder form which is again as the solid. Now what are the conditions which needs to be mentioned? On the arrow we were burning the magnesium ribbon. So this delta sign या फिर ये जो triangle sign है, that actually shows that heat is evolved. मैंने रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या देना था बच्चों? I need to put a arrow mark on it, right? So arrow mark
के ऊपर एक ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या बताता है आपको कि यहां पर हीट हुआ है, ठीक है। ओके, देन द फिफ्थ वन इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स टू मेक। तो पहले भी हम लोग बता दिए थे।